This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। बजेगा भारत झूमेगा भारत। This is Bharat FM. Good morning, America, and good evening, India. Welcome to Storytellers Cafe on Bharat FM channel, a radio channel based in Cincinnati, Ohio. And I am the host, your host for today, Usha Venkatraman. And it is my proud privilege to present Akshay Gandhi, our guest storyteller for today on Storytellers Cafe. Once upon a time, the Kavadia came to town. Everyone ran to him because he came to tell his stories sublime. Oh, tell it again, Kavadia. Please, tell it again. Everyone gathered around him. The doors and the windows flew open, and children tucked his stories in the deep pockets of their heart. Once upon a time. Oh, Kavadia, tell it again. Tell it again. So we have the Kavadia Akshay Gandhi in the house today in Storytellers Cafe. And Kavad is a unique style of storytelling. Kavad is a rich oral tradition of storytelling in Rajasthan, believed to be about 400 years old. Kavad is also the name of the medium used in this kind of storytelling. Now, the Kavad has illustrative stories on its multiple plates that are hinged together. These sections open and close like doors, replicating the several entrances of a temple. I'm not going to give you the entire story. Please do watch Akshay as he tells his story through his craft. Storytellers Cafe is very happy to present Akshay Gandhi today on Storytellers Cafe. And Akshay will talk about his craft via the very medium he uses to tell his story. Now, let me tell you about Akshay Gandhi. Akshay Gandhi is a theater professional, a practitioner, director, actor, and a facilitator. His work includes engagement with Kavad storytelling, tradition, solo performances. He is the founder and artistic director of Still Space Theatre, Bangalore, India. Yes, my friends, Akshay Gandhi is from Bangalore. And Akshay has studied theatre and performed under various masters in India and abroad, including SITI company in New York and the Odin Teatret Laboratory, Denmark. So Akshay Gandhi is a software engineer, and today he's going to regale you with his unique style of storytelling. And Akshay will talk to us about Still Space Theatre, and he's passionate about that, and I will let him talk to you. So over to you, Akshay. Welcome to Storytellers Cafe. बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, आपने ऐसा बढ़िया हमारे इतनी बढ़िया बात कह दी, आपने इतनी बढ़िया हमारे अच्छे बारे में कहा, हमको बहुत मजा आया। और हमने आपको ऐसे आपने हमको बुलाया यहाँ पे कहानी सुनाने के लिए, उसमें हमको जो आनंद आया कि हमको दुनिया से मिलने का मौका मिल रहा है, दुनिया को बताने का मौका मिल रहा है कावड़ का, उसमें बहुत मजा आया। तो आज की भाई साहब परफॉर्मेंस जो है वह तो है हमारे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में है, हमारे राजस्थानी हिंदी में, अंग्रेजी में हमारे नहीं है। हम जब बाद में बात करेंगे तो अंग्रेजी में आपसे बात करेंगे कावड़ के बारे में, स्टिल स्पेस के बारे में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भारत एफएम रेडियो वालों को हम शुक्रिया करना चाहते हैं कि आज हमारे इसका आयोजन किया। आज जो आयोजन किया है उसमें मैं आपको कावड़ के अंदर जो है माया की कहानी सुनाऊंगा कि भाई माया के बारे में आप सोच रहे होंगे कि आज के जमाने में कहाँ है, तो ऐसी बात नहीं है भाई साहब। आप क्या बताओ, आज हमारे देखो सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, फिर भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो माया का ही तो मजा है। माया के बारे में कबीर दास जी बड़े सुंदर शब्दों में क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई माया महा ठगनी हम जाने, निर्गुण फांस लिए करडोले, अरे बोले मधुरी पानी, पंडा के मूरत वे बैठी और राजा के घर रानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो ये है अनकथ कहानी। कि भाई ये कहानियां कही हुई नहीं है, अनकही कहानियां हैं। अब आपको मैं बताऊं, जितनी बार इन कहानियों को कह दो मजा आ जाता है, फ्रेश हो जाती है, ताजा हो जाती है। और कहानियां का मजा कैसे आता है भाई, हाँ कहते हैं हुकारा भरते हैं, मजा आ रहा है हमको, आनंद।
तो मजा आता है। लेकिन आज की क्या बात है, आप अपने मन में कहोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने हुंकारा भर दिया है। तो जरा हमारे जितने लोग हैं फेसबुक लाइव पे वो हुंकारा भर दें अपने मन में, तो मजा आ जाए हमको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दिल की बात हम तक पहुंची है। आज के कावड़ की हम शुरुआत करते हैं। तो ये कावड़ है और मैं आपका कावड़िया। इस कावड़ में किस्सों का बुना माया जाल है, जिसमें उतरकर मैं किस्सों को जिंदा कर सकता हूं। जो सुनने वाला हो सुना सकता हूं। किस्सों का बुना माया जाल इस कावड़ में बंद है और ये दोनों हैं उसके रखवाले, जो इसी कावड़ में कैद हैं। इनकी इजाजत के बिना ये किवाड़ खुल नहीं सकते और हम कावड़ में जा नहीं सकते। इजाजत लेना बहुत जरूरी है भाई साहब। हमारे क्या इजाजत लिए बिना बड़ी परेशानी होती है। माँ बाप को बच्चों से, और बच्चों को टीचर से, और टीचर को प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल को बास से, सबको परेशानी। इजाजत लेना जरूरी है। इजाजत लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये दोनों कौन है। तो आप जरा इनको गौर से देखो। आपके मन में जो कहानी आया वो तो बहुत बढ़िया है। मेरे मन की कहानी ये है कि भाई ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई हैं और अलग खून है दोनों में। जैसे मन से हाथ छूटा माया जाल में फंस गए। प्रेम किया एक ही लड़की से, फिर ज्ञान विवेक भी क्या करे। वो काल चक्र की बेटी थी, विष्णु की मुंह बोली बहन। वासना में नयन शुद्ध हुए नदी किनारे अकेला देखकर झपट पड़े शूरवीर। पर काल की दृष्टि कहां नहीं कर कैद यहाँ पर छोड़ दिया। मिटा दिया भूत, मिटा दिया देश। अब खोए बेटों की तलाश में बाप बड़ा विचलित हुआ। अरे भैया आप लोग हमारे खो जाएंगे तो भी आपके पिताजी को कितनी टेंशन होगी। इनके पिताजी को बहुत टेंशन हुई। तो भक्त बाप ने तप किया, विष्णु को प्रसन्न किया। पर बीता हुआ काल और घूमा हुआ चक्र विष्णु स्वयं फिरा नहीं सकते। तब विष्णु ने इस कावड़ में किस्सों समेत इन दोनों की पहचान छुपाई। अरे भाई विष्णु का एक रूप तो कृष्ण भी है। पहचान के साथ एक शर्त बनाई कि किस्सों के इस कावड़ में जो जाएगा वो या तो खुद खो जाएगा या इन दोनों की पहचान लेकर ही वापस आएगा। ये बात तो जग जाहिर है कि जो खुद संसार में होता है वो संसार देख नहीं पाता। जो संसार के बाहर है, माने आप लोग ऑडियंस, उन्हीं को सारा संसार दिखेगा, उन्हीं को सारी कहानियां दिखेगी। तो अगर आप वादा करो कि किस्सों को सुनकर समझकर इन दोनों की पहचान बता पाओ तो मैं अपना रखूं सर ओखली में। हुंकारा भर दो मन में, हमको मजा आ जाएगा। ठीक रही, आपके हुंकारे से हमारी बात बढ़ती रहे आगे। तो ये किवाड़ मैं आपके लिए खोल देता हूं कावड़ का, और कावड़ के सफर पे शुरू करता हूं आपको ले जाना। संध्या का वक्त था और चांद सूरज आसमान में। संध्या का वक्त था, चांद सूरज आसमान में। डूबता सूरज थका हुआ था। चांद उसे देख मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट से खींच उठी, सूरज भी फिर तमतमा गया। और देखते वर सूरज के चांद भी फिर चुप ना रहा। बरसाने लगा अंगड़ाइयां। मदमस्त चांदनी की रोशनी में गजब नजारा बिखर गया। एक घमासान सा हो गया। रंग बिखरे आसमान में, धरती रात कली में घुल गई। वक्त हुआ, वक्त आगे किसकी चलती है। वक्त हुआ तो सूरज डूबा, चांद भी गुस्से में लौट गया। उसी दिन से अमावस हुई। मैं उषा जी बताऊं आपको, उससे पहले अमावस नहीं होती थी भाई। उसी दिन से अमावस हुई, अंधेरी काली रात हुई। दोनों रूठे बैठे रहे और हमारे धरती पे हलचल हुई। किस्सा तो किस्सा है, गुस्सा तो गुस्सा है भाई। गुस्से से बड़ा गुरूर है कि गुरूर के रहते पत्थर पानी में डूबे, गुरूर के रहते कितने सर कटते। गुरूर दोनों में उफना हुआ था। अगर आसमान में लौट गए हारे माने जाएंगे। कई उपाय किए गए। अरे कई उपाय किए गए। साधुओं को बुलाया गया, संतों को बुलाया गया, फकीरों को बुलाया गया। अरे हमारे मोदी जी को बुलाया गया, तो अमित शाह को बुलाया गया, हमारे ट्रंप भाई को बुलाया, सबको बुलाया गया। किसी से कुछ हुआ नहीं। और जब कुछ होता दिखा नहीं तो राम रहीम को पुकारा गया। जब कुछ होता दिखा नहीं तो राम रहीम को पुकारा गया। पर एक तूफान और उठा था। महाबली तीनों लोगों पर राज करने निकला था। खून की प्यासी उसकी टोली उसे चक्रवर्ती बनाने निकली थी। राम रहीम महाबली को रोकने में लगे थे कि अंधेरे की समस्या आन पड़ी थी। खून की प्यासी इसकी टोली से चक्रवर्ती बनाने निकली थी। राम रहीम महाबली को रोकने में लगे थे कि अंधेरे की समस्या आन पड़ी थी। अंधेरे ने इस पागल टोली को एक राज्य के बाहर रोक रखा था। राम रहीम को वक्त मिला था, पर दुविधा इससे गहरी है। जो अंधेरा रहने दें तो त्राही त्राही मच जाएगी, और जो अंधेरा हट जाए एक राज्य बलि चढ़ जाएगा। विवश होकर दोनों निकल पड़े अंधेरे की गुत्थी सुलझाने। राम चले चांद के पास, रहीम पहुंचे सूरज के द्वार। चांद थोड़ा चंचल था, झांक झांक कर देख रहा था। सूरज अभिमान से भरा हुआ था, आक्रोश में बैठा हुआ था। रहीम ने सूरज से सवाल किया, अरे व्हाट्सअप भाई, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? क्या बात है? किस बात का गुरूर है? ये अभिमान कितनों ने किया, आज नामो निशान कहाँ है? यूं हट लेकर क्यों बैठा है? क्यों कमरे में बंद बैठा है? संसार का संचालक तू है, तेरे रुकने से सब रुका हुआ है। यूं अभिमान में बैठ जरूरत अपनी ना खो देना। जो एक तारा टूट गया हजार और मिल जाएंगे।
ये जो घमंड तू करता है तेरी बुद्धि से जन्मा है, और जो बुद्धि टूट जाएगी तो अपने आप निर्मल हो जाएगा। भाई हमारे तो क्या है, राजस्थान में कहानी सुनाने की प्रथा इसलिए बनाई गई कि भाई जो पढ़ाई लिखाई कर लेता है उसको लगता है वो हो गया बुद्धिमान, उसको वह सारी समझ आ गई। लेकिन हमारी बात सच ये है कि पढ़े लिखे गवार हमारे देश में, दुनिया में ज्यादा है। इसलिए कहानियों का निर्माण हुआ कि आपके बुद्धि को जरा वो है निर्मल बना देते हैं। तो रहीम ने सूरज से कहा, मैं एक कहानी कहूंगा, मैं एक पहेली बूझूंगा, जो जवाब तूने दे दिया मैं अभी लौट जाऊंगा, वरना आसमान में लौटोगे और चांद को भी मनाओगे, कहो मंजूर है। सूरज ने एक पल के लिए सोचा, बात तो ये ठीक कहता है, किस बात का गुरूर मैं करता हूं, पर खेल देखिए माया का, अरे खेल देखिए माया का। सूरज की जबान से निकला, अरे जा तू क्या मुझे हराएगा, सुना क्या किस्सा सुनाएगा। ठीक रही फिर बात, आपके हुंकारे से बढ़ती रहे बात। तो भाई रहीम ने कहानी शुरुआत की, और क्या कहानी बनाई उसने, देखो आप जरा, मैं आपको बताऊं, हमारे कावड़ के किवाड़ ऐसे ही खुलते रहेंगे एक एक करके, और किससे आपके सामने आते रहेंगे। तो रहीम ने कुछ कहानी ऐसे सुनाई, हुजूर जरा गौर से सुनिए, हुजूरान जरा आप लोग भी गौर से सुनिए। ये कहानी है कर्मठ माँ और उसके दो जवान निकम्मे बेटों की। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जवान लेकिन निकम्मे बेटे। आप सोच रहे होंगे कैसे, अरे आज हमारे जमाने में देख लो आप भाई, कितने सारे लोग होते हैं जो, भाई जवान लोग होते हैं जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फटाफट 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 लगे रहते हैं, और उनको बोल दो हमारे घर पे थोड़ा काम है आप आ जाओ, फुसफुस हो जाते हैं। तो जवान लेकिन निकम्मे बेटे। एक रात को माँ के स्वप्न में गुजरे हुए पति ने दस्तक दी। ये रात, ये अधेड़पन सच है या पति से मुलाकात सच है। किसे सच मानूं, किसे स्वप्न मानूं, किसे सच्चाई कहना मुश्किल है। स्वप्न में जवानी लौटी थी, मन में उमंगे दौड़ी थी। अरे भाई, पति के साथ इतने सालों बाद वक्त गुजारने का मौका मिला था, कैसे उसे जाने दूं। पर कई सारे वक्त गुजारने के बाद, रात को अंधेरे में स्वप्न में वक्त गुजारने के बाद, अंत तो आखिर वही था। पति ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और मौत की गोद में जा बैठा। सक पकाई मां की आंखें खुली, सुंदर सपना टूटा। रात रात के अंधकार में दोनों बेटों में बाप सी कायरता और कई जिंदगियां बर्बाद होती दिखी। मुंह कड़वाहट से भर आया, उठा कटारी वार करने चल पड़ी। पहला आघात पहुंचा पाती उसके पहले एक की आंख खुली। मां का मन क्रोध से करुणा में बदला। बेटा हाथ जोड़ शीश नमा नमी आंखें लिए खड़ा रहा। माया विचारों में कई हेर फेर करती है। बेटे ने भी विचार किया, क्या गुजरी होगी मां पर, जवानी से अधेड़ उम्र तक कितनी बार बनी होगी, कितनी बार बिखरी होगी। मैं एक फर्ज निभा न सका, तेरे उम्र का सहारा बन न सका। अंधेरी काली रात हुई, माया ने ऐसा चक्कर डाला, छीन कटारी हाथ से क्षणभंगुर जीवन खत्म कर डाला। खाली आंखें और स्तब्ध श्वास लिए मां घर छोड़कर चली गई। दूसरा बेटा जब रात को उठा तो उसने नाग नागिन के जोड़े को लथपथ शरीर से गुजरते देखा। उसका मन घबरा गया, उसने घर से पैसे इकट्ठा किए और वो घर छोड़कर भाग गया। इस बात पर रहीम ने कहानी को विराम दिया। उसने सूरज से सवाल किया, भाई आप भूल तो नहीं गए, हमारे सवाल और जवाब की बात चल रही है। रहीम ने सूरज से सवाल किया, अरे बंधु एक बात बताओ कि माँ पिता और दोनों बेटों में से किसने सबसे उचित उपयुक्त व्यवहार किया। जैसे आप लोग सोच रहे हैं, सूरज भी सोच रहा था और उसने सोचकर जवाब दिया। उसने कहा, देखो भाई, जो दूसरा भाई था उसने तो किसी को परेशान नहीं किया, इसलिए उसी ने सबसे सही काम किया। इस बात पे रहीम मुस्कुरा गया। उसने कहा, बंधु फंस गए ना मेरे शब्द जाल में। मैंने सही नहीं उचित पूछा है, उपयुक्त पूछा है, अप्रोप्रिएट पूछा है। इस बात पे सूरज तमतमा गया। अरे वाह रे बंधु, तेरी माया, शब्द मरोड़ना कोई तुमसे सीखे। जिस ज्ञान की तुम बात करते हो तुम खुद कितना समझते हो। तुम और राम जो नीतियां अपना रहे हो महाबली को रोकने के लिए, वो कितनी उचित है, वो कितनी उपयुक्त है। पाखंड से भरे संसार का विनाश करके महाबली एक सुंदर सच्ची दुनिया की रचना करना चाहता है, और तुम कपट का सहारा लेके उसी को रोकने लगे हो। तुम भी सही हो, क्योंकि तुम भी तो इंसान हो, पर क्या ये उचित है, क्या उपयुक्त है। अरे भाई, तर्क वितर्क का खेल रात भर चला, सुबह तक चला, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन चला। उसके बाद सूरज आखिर मान गया। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, तुम्हें तुम्हारा ही किस्सा फिर से सुनाता हूं, और देखो फिर कहां पे बात जाती है। अब देखिए, सो thank you so much. This is just the first part of Coward, as you heard. There are more parts as we go along, and each door opens and new paintings open up. And as they open, each has a story, and each story then connect with everything else.
So this is just a small introduction to what Usha ji mentioned in the beginning, that it's a box which has stories. This is how it goes. And I'll just give you another demonstration. So for example, how you sort of looked at the first story of the guards, I can actually share another story of guards from another cardboard which we made, and then maybe you will be able to see a little more about how cardboard work, and then we will obviously talk a little bit about cardboard as we go along. Yeah. So this is a cardboard we made to dedicate for Pandit Ravi Shankar ji. This is his 100th birth anniversary, and it was commissioned by Indian Music Experience. So when we looked at it, okay, we look at the stories of guards usually. So I'll tell you the stories of the guards in this cardboard. This is a smaller one. भाई साहब, हमारे जीवन में कहानियां सुनाने की तो बहुत है, पर कौन सी कहानी सुनानी चाहिए ये सोचना बहुत मुश्किल है। आप जब हम सोचते हैं कि भाई कावड़ के अंदर किस्सों का बुना माया जाल है, तो भाई आप मुझे बताओ कि रक्षा किसकी कर रहे हैं। अरे जब जब हम रक्षा की बात सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि खजाना होगा, कि भाई तहखाना होगा, कि भाई हमारे लिए कोई ना किसी तरह का कोई जादुई तिलिस्म होगा। अरे लेकिन हमारी संस्कार, हमारे संस्कृति, उसको सहेजना संरचना, वो भी तो एक तरह की रक्षा है। तो ये दोनों जो हैं, ये द्रव्य के नहीं चेतना के रक्षक हैं। एक यथार्थ है, एक अनुभूति है, एक निश्चित है, एक चंचल है, एक संवाद है, एक आनंद है। संगीत के दोनों रूप है, संगीत के दोनों पहलू हैं। संगीत के इन स्वरूपों से मिलने का एक मौका है। एक नदी के दो किनारे जिनका मिलना सिर्फ नावों से संभव है। एक पूरब है, एक पश्चिम है। बचपन में दोनों नदी किनारे तारों की रोशनी में खेला करती थी। खेल बड़ा संजीदा था। कुछ तारों का समूह बनाकर ध्वनियों का रूप देना था, उनकी श्रृंखला बनानी थी। जैसे जैसे ध्वनियां फैलती आकाश में, उन्हें आंचल में समेट कर लाना था। एक बार ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से दोनों ने एक ही 9 तारों का समूह चुना। उन्हें ध्वनियों का रूप दे पाते उसके पहले 2 तारे टूटकर विलुप्त हुए, और ये दोनों खेल छोड़कर तारे ढूंढने निकल पड़े। अब एक पूरब को निकली, एक पश्चिम को। एक का रास्ता ब्रह्मांड की तरफ था, एक अपने आप में उतर गई। दोनों अपनी अपनी यात्राओं में उलझती थी, फिर सुलझती थी, सुलझकर फिर से उलझती थी, और उलझकर फिर से सुलझ जाती थी। कई वर्ष दोनों ने इसी तरह से गुजारे और एक दूसरे की तरह अपने आप में विकसित होने लगी। पर जब पलट कर देखा तो रास्ते धुंधले पड़ चुके थे। कोई नक्शा, कोई चिन्ह, कोई निशान नहीं था। एक दूसरे से मिलने की कोई संभावना नहीं थी। तब इस कावड़ की रचना हुई। इसमें बसे जो पात्र हैं, वो इन्हें किवाड़ों के रास्ते एक दूसरे से मिलाएंगे। और ये दुनिया कहानियों की है, तो इसलिए कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले अगर अंत तक नहीं जाएंगे तो बीच में ही कहीं खो जाएंगे, और इन्हें मिलता कभी ना देख पाएंगे। इसलिए अगर इस कावड़ को खोलना है तो अंत तक चलने का वादा करना होगा, कावड़ के किवाड़ों की का सैर करना होगा। So this is, I've just opened up the second cupboard for you just to see. So when I say we, it's me and my collaborator Rohit Bhasi. He works with the name Indigo Oranges. He's a visual artist. All the artwork you see is by Rohit. And this is how we interpreted in a folk tale Pandit Ravi Shankar's musical journey. So this is covered. I can tell another story as we go along with this covered, and we can also talk a little bit about it given the time we have together. Right, so this is covered. This is a tradition from Rajasthan, as Usha ji said, and I'm a theater artist, so I found this by luck, by fortune. I found this, that nobody is practicing as such covered. Researched for a couple of years and then tried to create this world. I'm still trying to learn and research more into how to create more covered stories and what does it mean to have covered. And this is a journey so far. We work as a still space theater. It's a company in Bangalore, and I really want to take this small opportunity we have together to also tell that our company members are working really hard day and night to support artists in Karnataka. We have so far supported around 200 artists with Russian. So if any of you are interested in knowing more about our Russian kit distribution initiative, it's called For Artist and Art, and please get in touch with us. And I really thank Bharat FM and Usha ji to give me this platform to tell you about that. This is what Coward is, roughly. Yeah, I'll tell you one more story from Coward. Yeah, we have just enough time to tell one more story, and I'm going to tell you from the other Coward, not this one. And as you would have already realized, it's in Hindi. In a traditional sense, it is spoken out in Marwadi, but I perform it in Hindi. It's more convenient. I'm from Rajasthan. I'll tell you this story, maybe. It's just opened.
तो मैं आपको बात बताऊं भाई साहब कि हमने आपकी सुनी थी महाबली की बात, तो मैं आपको बताऊं ये जो पेड़ जहां है, वहीं से अभी अभी महाबली की सेना गुजरी थी, वहीं से अभी अभी महाबली की सेना गुजरी थी, हर जिंदगी को, हर जीवन को खत्म करके, तबाह करके निकली थी। बस ये सूखा पेड़ और ये चिड़िया रह गई थी। तब से ये चिड़िया आंखें भींच कपकपा रही थी। आंखों के पीछे अंधेरा है, अंधेरे में रमता एक मेला है, वहां जिंदगी है पर अंधेरा है, आंखों के बाहर तो चुंधियाता उजाला है, उजाले में इंसान की गंदी हरकत है, हरकत ने जी को खकोला है, आंखें खुश नसी है, बंद तो होती है पर कानों का क्या करें, सन्नाटे से फट रहे हैं। इस बात पर कान झल्ला, आंखें झल्ला उठी, कानों को घूरते टौंट कसी। अरे कम से कम तुम्हें सुनाई तो वो देता है जो असलियत में होता है, मुझे तो बंद होकर भी मनस पटल में वो सब दिखता है जो असलियत में नहीं होता। कुछ देर बाद कानों पर कुछ शब्दों ने दस्तक दी। चिड़िया ने खुशी के मारे आंखें खोली। बाहर सब वैसा ही जैसा हर दिन होता है। फिर कल की तबाही सच थी, आज की धूप पंख फैलाती छत पर पहुंची। चुग्गा तो असली है, खाने लायक भी, पानी भी सच्चा है, पीने लायक भी, घर में जीवन सामान्य है, बाहर चहल पहल भी वैसी ही। तभी पास से झगड़े की आवाज आई, उस पर हंसते दो लड़कों की हंसी आई। पूजा की घंटी बजी, प्रेम में डूबे जोड़ों की खुसफुसाहट आई, बच्चों की किलकारियां आई, बूढ़ों की नसीहतें आई। चिड़िया खुशी के मारे अपने सूखे पेड़ पर लौट आई कि भाई बाहर दुनिया में सब कुछ वैसा ही है, महाबली की तबाही शायद झूठी थी। और वो लौट आई। अब हर जीव की एक उम्र होती है, हमारी चिड़िया की जरा छोटी होती है। अब आप मैं बताऊं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो सुन रहे होंगे कैसे फटाफट जवानी निकल गई है, और बच्चे सोच रहे होंगे हम कब बड़े होंगे। ये माया का खेल है। तो भाई चिड़िया ने वापस आई। अब ऊंची टहनी तक उड़ नहीं पाती, नीचे पर बैठकर ही धूप सेकती है। जब उड़ती थी तो दूर तक देखा करती थी, नीचे और भी अच्छा है, सब करीब से देख पाती हूँ। इन बच्चों में से कोई बड़ा नहीं हुआ, इन बूढ़ों में से कोई मरा नहीं। कुछ हर दिन खुश रहते हैं, कुछ हर दिन दुखी, कुछ लड़ते हैं हमेशा, कुछ प्रेम में डूबे रहते हैं। अरे भाई ये क्या तबाही वाले दिन को ही बस बार बार जीते हैं। ना वक्त आगे बढ़ रहा है, ना ही कोई किस्सा। अगर वक्त भी ठहरा है और ठहरा है जीवन भी, अगर आज का दिन जैसा वैसा ही अंतिम दिन भी, तो आज ही का दिन अंतिम क्यों ना हो। कहाँ है माया जो अपने परिवर्तन के वाहन में बैठाकर सैर कराती है, जीवन को सुगंधित और नृत्य को गुलाब बनाती है। ऐसा कहर टूटा मासूम सी चिड़िया पर कि दर्द बांटने वाला भी कोई न था। आंखों में पानी भर आया और जैसे ही आंसू टकराया टहनी पर, एक पत्ती फूट पड़ी। यकीन करना मुश्किल था। जिस पेड़ को आज तक मृत समझा, जिस शहर को समझा जीवित, वो मृत पेड़ जीवित था और सारा शहर मृत। मुड़कर शहर को देखा, एक कपकपी सी दौड़ गई, पलटकर चिपटी पेड़ से और अश्रुओं में भीग गई। लबालब डुलते आंसुओं से टहनी पत्तियों सी भर गई। तुमने हमें जन्म दिया, तुमने दी काया, तुम ही हमारी रचयिता, तुम ही हमारी माया। ना कोई किसी का रचयिता है, ना कोई किसी की रचना। रचना रचती स्वयं को है, रचनाकार तो बने बस जरिया। पर कौन रचता खेल सृष्टि का, कौन रमता इस खेल में। अरे जो डूबे रंगों के सागर में, वही रमता अपनी रचना में। तो आज भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमें अपने रंगों में रचने के दीजिए। आपके जो रंग है उसमें आप रचते रहिए, तभी हमारे माया का खेल में मजा हमको आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी और भारत एफएम कि आपने इस कावड़ को यहाँ तक बुलाया। एंड देन आई give it back to Bharat FM for taking it forward. Oh, thank you, Akshay. Let's take a moment to, take it inside us. What a wonderful storytelling, right? It was amazing. And, the flow, the language, and each compartment opening, and then for us to unravel what is inside. You really did it beautifully when you were talking about the leaves flowing, right? You were talking, Yeah, I was yeah. thinking of swirling and whirling and dipping and diving. It's just beautiful. It was lovely. And I want to share with our listeners here, we do have 5 more minutes, Akshay. So Yeah. you can talk about Still Space Theatre and the endeavor, the fantastic initiative that you've started to sustain the artists in Karnataka. Please do talk to us about it, and maybe I could put it in the message here. They can go to That will be great. the Still website or Space Theatre, yeah. Still Space Theatre. So thank you. We have been last 3 to 4 weeks, we have been working. We means our team, which is Still Space Theatre, and now a couple of other Bangalore theatre artists have joined hands. And we have been trying to reach out to artists in different parts of Karnataka who are in urgent need of ration, of any essential, sometimes medicine, sometimes other essential household essential, which they are not able to uh, just gather purely because of the situation right now, and especially folk artists,
rural artists, they have been dependent on programs and functions and religious ceremonies and gatherings, which didn't happen, and it's not going to happen for next couple of months, and they don't know anything else for survival. So we are trying to reach out to them, verify, identify them, and then call them and ensure that a ration kit delivers to their house or a medical kit delivers to their house. And we don't do it by traveling. We do it basically to go to a local store, a network of local stores, grocery stores. We pay Google Pay or Phone Pay or Paytm, and then artists go to the ration store and collect, the nearest ration store. And that has been super successful so far, because then there is no contact, there is no problem in terms of traveling and time consuming actions. It has been well, but each day we get more and more calls, and we receive more and more demand, and then we try to understand what best we can do. So far, other artists also have come forward and supported very generously, including Usha ji. They have did another show where the donations went for this particular cause from Mumbai Storyteller Society. Other artists are doing also shows in Bombay. There's another group who did a workshop, and whatever money came for donation. So this is amazing, because this is the first time I feel that as a theater artist, theater is about community, and in a way the community is sort of coming together. So it's not just about me, it's the entire team as well as people who are making it possible. So we are right now we are finishing tomorrow third round of distribution, and we will cover around 250 by then, and then fourth round of distribution will include 200 more artists. After that, we are also thinking of No, sorry. I just wanted to check out, Akshay. Is this an initiative only during the COVID time? Yes. Yeah, this just started because, I mean, we are like, oh my God, something has to be happening. I mean, even though we are full-time artists, we are struggling, but we still have means and ways to sort of work it out. Whereas artists who don't have technology or who don't have access to any other thing, they survive. They are finding it very difficult. In fact, just now, like before the show, I got a message saying we supported one person with a heart medicine kit, and he has not been taking a kit for he has not been taking medicine from last 4 months, which is his heart medicine. We're like, no, please, and that much we can do at least. And this is what the initiative is. It is basically Still Space Theater. You can find details about initiative there. You can always contact us for anything. Ideas are in fact amazing. If you have a suggestion, nothing like it. So whatever you feel. Yeah, and this is Covered, which is what we are here for. It's an interesting form, and I'm working on it and trying to see where we can take it. It's a traditional form. It's one of the project at Still Space, instead of theater project, it's a storytelling project, and we're trying to see how we can sort of understand the form and all of that. Yeah, wonderful, Akshay. Is this your full-time job? Do you work with Covered? My full-time job is theater artist, so I do act whenever somebody give me chance. I direct plays, I teach, facilitate, I train, and I also like research. I mean, research is something which I take from my science background, and I really like to spend a lot of time. And Covered being one of the research project, it started as a research project, like really understand what is the form, what are the elements, what are the nuances, and as you go in it as an artist, you're like, oh my God, this is so beautiful. You want to do it. You want to try something, your hands on it. And that is one of the research projects. Yeah. Is Covered getting endangered? I mean, is it kind of you have to revive the survival of this art form? Is it, or is it being practiced? So Covered, it looks beautiful. Yeah, both these covers are made by, as I said, my collaborator Rohit Bhasi. He is a painter. Indigo Oranges is his painting pen name. But Covered as such looks beautiful. So it sells. So people kind of buy. And somehow, I mean, in the last couple of years, especially, there's an amazing amount of work done by Neena Sabnani ma'am from IIT Bombay. And she's really brought this forward to many, many people. And somehow there is a space for people to buy Covered. And that is one community. The other community, by the way, is performer community, which performs in Marwadi, and they sort of don't know how to navigate through this new world, because this has found a business in a way, and that is the part which I'm more interested as an artist. I'm like, oh, I'm a performer, I'm an actor. Can I learn something and see if I can or me or whatever number of people can make it at least go, at least if the art part of it can sort of thrive. Yes, so that's just a small. This is wonderful, step. And I want to tell it out to all the listeners out there that Storytellers Cafe endeavor is to bring artists, who tell stories using different mediums. So today we have Akshay Gandhi. Next weekend
Please do tune in. We have Kamini Ramachandran from Singapore, and it'll be conversations and expressions on Storytellers Cafe. We also have the famous singer Neela Bhagwat, who will be telling a story from Ramayana and singing Tumuri, taking it in the musical storytelling. So we have some unique style of storytelling up ahead. So thank you, Akshay Gandhi. Thank you. Thank you on behalf of Storytellers Cafe and Bharat FM for coming today evening and accepting our invitation and regaling our audience so wonderfully. It's lovely. Thank you. Thank you so much. Always excited to perform. Thank you. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. बजेगा भारत झूमेगा भारत. This is Bharat FM.